Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Pad Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about modulation by complex information signal. Complex information signal means the information signal is a combination of multiple sine waves of different amplitude and different frequency. And if the message signal is complex, then what should be the effect on output of modulation, amplitude modulation, that we discussed in the last class. Now today we will discuss about the variation of AM. ओके मतलब जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, अब तक हमने जो डिस्कस किया उसमें क्या था कि जो भी आउटपुट हमें मिल रहा था दैट वाज DSB FC. So whatever modulation, amplitude modulation we discuss, in which we note that our amplitude modulated wave consists of two sidebands. One is the upper sideband, another is the lower sideband, and one carrier signal. Hence it is known as a DSB FC. Now there are several variations of AM that can exist. Okay, so standard AM is the DSB FC, and from DSB FC we can generate the variety of amplitude modulated signals. So one is the double sideband with carrier, that is a double sideband full carrier. This is the first version of AM, and which is very basic, and that we discussed in our last lectures. Okay, so double sideband with carrier is the most widely used type of amplitude modulation. In fact, all radio channels in amplitude modulated band use this type of modulation. मतलब जो हमारा AM रेडियो है, that basically double sideband full carrier signal. Okay, now we can also remove the carrier from this DSB FC AM, and if we remove the carrier, then resultant will be double sideband suppressed carrier, and which is abbreviated as DSB SC. Okay, there are two sidebands, दोनों sideband रहेंगे, upper sideband, lower sideband will be there, but the carrier signal will be suppressed, or carrier component will be suppressed, and that is basically known as a double sideband suppressed carrier. Okay, so this is basically same as this our standard AM, but without carrier. It is without carrier. Now next, single sideband modulation. So another variety of AM, that is a single sideband modulation, and this is our this thing we will discuss in our today's lecture, the concept of single sideband modulation. So basically in this type of modulation only one sideband is transmitted. Okay, or out of upper sideband and lower sideband only one, either lower sideband or either upper sideband will be transmitted, and there will not be any carrier. That is not a single sideband modulation. And another is a very important vestigial sideband modulation. There is a VSB, and which basically this vestigial sideband modulation is the modification of single sideband modulation to aid the generation and reception of the signal. बेसिकली जो सिंगल साइडबैंड मॉड्यूलेशन जनरेशन प्रोसेस है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. कैसी प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो वो प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाने के लिए जो जनरेशन है सिंगल साइडबैंड जनरेशन, तो उसमें जो मॉडिफिकेशन करते हैं प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं वेस्टेजियल साइडबैंड मॉड्यूलेशन. द डिटेल ऑफ दिस दैट वी विल डिस्कस, डोंट वरी. ओके, उसको ये सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. इसको हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है. जो भी हमने AM के बारे में डिस्कस किया अब तक, दैट वाज डबल साइडबैंड विथ फुल कैरियर DSB FC. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द DSB SC, single sideband modulation and vestigial modulation in our upcoming lectures. Now today we will discuss the concept of this double sideband suppressed carrier, single sideband modulation. Now let's discuss about the concept of single sideband modulation and DSB SC. ये दोनों के कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस आज के लेक्चर में करेंगे. सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. द डिटेल ऑफ दिस बोथ विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स. सो बेसिकली सिंगल साइडबैंड मॉड्यूलेशन और DSB SC है क्या? व्हाट इज दिस मॉड्यूलेशन? So as we know
in a process of modulation, the modulated wave consists of one carrier and two sideband. So if you look at this mathematical expression of AM, ये AM का mathematical expression है, then you can see it consists three components. It is a sum of three components. Which are three components? One is this. This is basically centered at the carrier frequency and whose peak amplitude is EC. Hence this component is basically known as a carrier signal, basically known as a unmodulated carrier. Unmodulated कैरियर और ओरिजिनल कैरियर भी उसको आप बोल सकते हो, नो इश्यू, बिकॉज इट इज द कैरियर सिग्नल इन ओरिजिनल फॉर्म. कैरियर सिग्नल इज इन ओरिजिनल फॉर्म. नाउ दिस कंपोनेंट इज द लोअर साइड बैंड विच इज सेंटर्ड एट द फ्रीक्वेंसी fc minus fm. This is the lower side band. Lower side band abbreviated as LSB. Okay, abbreviated as LSB, lower side band, whose amplitude is MEC by 2. And this component is the upper side band which is centered at the frequency fc plus fm. So this is basically upper side band. Basically upper side band. Okay, upper side band abbreviated as USB. And its amplitude is also same as the amplitude of LSB, that is the MEC by 2. Now if we look at this amplitude modulated wave carefully, and if we look at this, all these three components, then this component does not carry any information. What is the purpose of modulation? Modulation का purpose क्या है? Modulation का purpose क्या है? Purpose एक ही है कि आपका जो इंफॉर्मेशन सिग्नल, मैसेज सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन है उसको लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल करना. मतलब आपका मॉड्यूलेटेड वेव, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, वो इंफॉर्मेशन कैरी करना चाहिए, तभी वो मीनिंगफुल है, अदरवाइज नॉट. तो अगर मैं आपको ये तीन कंपोनेंट को हम देखें केयरफुली, तो ये जो कंपोनेंट है पहला अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, वो तो कैरियर सिग्नल है ओरिजिनल फॉर्म में, उसमें कोई मॉडिफिकेशन है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. इट इज द कैरियर सिग्नल इज इन ओरिजिनल फॉर्म. इसका मतलब ये हुआ दिस कंपोनेंट डू नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन. ये कोई इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता. मैसेज सिग्नल की कोई इंफॉर्मेशन ये हमारा अनमॉड्यूलेटेड कैरियर कैरी नहीं करता. नो इंफॉर्मेशन इज देयर इन दिस कैरियर सिग्नल. मतलब हम ये कैरियर सिग्नल को भेजे या ना भेजे वो मीनिंगलेस है. अगर हम उसको भेजेंगे तो भी वो कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करेगा. ओके, तो उसको भेजो या ना भेजो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस. कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं है. तो ये कंपोनेंट यूजलेस है. ट्रांसमिशन ऑफ दिस कंपोनेंट इज वेस्ट, सिंपली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. कम्युनिकेशन रिसोर्सेज का वेस्ट है ये. ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस टू कंपोनेंट केयरफुली, okay, before discussing this, if we remove this component by some filtering technique, अगर मैं ये तीन कंपोनेंट्स में ये कंपोनेंट हमारा यूजलेस है, तो अगर मैं ये कंपोनेंट को रिमूव करें, हम ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को फिल्टर कर दें बाय यूज ऑफ सुटेबल फिल्टर्स, देन रिजल्टेंट मॉड्यूलेशन विल बी DSB-SC. मतलब ये कंपोनेंट को हम फिल्टर कर दें, निकाल दें उसको बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ AM. हम AM सिग्नल को ट्रांसमिट करें, इससे पहले कोई सुटेबल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक यूज करके, फिल्टरिंग टेक्निक यूज करके अगर मैं ये कंपोनेंट को निकाल दूं तो कितने कंपोनेंट बचेंगे? सिर्फ दो, ये वाला और ये वाला. मतलब क्या हुआ इसका? दिस इज द डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन. तो ये कंसेप्ट किसका हो गया? डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन. और इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर था, जो यूजलेस था, जो कंपोनेंट यूजलेस था, उसको अभी हमें भेजने की जरूरत नहीं है. तो रिसोर्सेज का सेविंग होगा, द रिसोर्सेज विल बी सेव्ड. क्लियर हो गया? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर. ओके, डन. ओके, सो दैट इज नोन एज अ डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन. ओके, सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन. नाउ अगर हम ये आउटपुट को ठीक से अभी भी देखें, तो अगर आप देख सकते हो कि ये जो कंपोनेंट है दैट इज द लोअर साइड बैंड, दिस कंपोनेंट इज द अपर साइड बैंड. बोथ आर एट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. ओके,
but if you look at the amplitude of these two, then amplitude are same. Amplitude are same. मतलब ये हुआ बच्चों कि both carry the same information, no change. There are duplication of the information in the two side bands. We have two side bands at the different frequency, but the amplitude of both the side bands are same. It means that both the side band carry the same information. दोनों में information same है. तो अगर मैं दोनों को भेजूं या सिंगल को भेजूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा. That does not make any sense. अगर मैं एक को भेजूंगा तो भी इंफॉर्मेशन कन्वे होने वाली है, अगर दो को भेजूंगा तो डुप्लीकेशन होगा इंफॉर्मेशन का, बिकॉज बोथ द कैरी द सेम इंफॉर्मेशन. सो इंस्टेड ऑफ transmitting these two side bands, if we transmit one, then information will be conveyed from transmitter to receiver plus resources will be saved, because हमें एक ही कंपोनेंट ट्रांसमिट करना है तो उसमें जो पावर लगेगा वो पावर सेव होगा. ओके, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. It means that if we transmit only single side band, then our information will be completely communicated with saving in the resources. कौन कौन से रिसोर्स सेव होंगे? बिकॉज हमें पता है कि जो हमारा जो एक्सप्रेशन है पीटी पावर का, टोटल पावर का, पीटी इज इक्वल टू पीसी 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का टोटल पावर का एक्सप्रेशन है. And total power of this amplitude modulated wave is the sum of the power of carrier, upper side, lower side band and power of the upper side band. मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं ये तीनों कंपोनेंट मतलब ट्रांसमिट करेंगे हम तो इतना पावर चाहिए हमें, लेकिन अगर हम ये कंपोनेंट ट्रांसमिट नहीं करेंगे तो थोड़ा पावर सेव होगा, बिकॉज इसको सेंड करने में जो पावर लगेगा वो अभी सेव हो जाएगा, बिकॉज हम सेंड नहीं कर रहे. सिमिलरली अगर हम ये कंपोनेंट सेंड नहीं कर रहे, अगर ये कंपोनेंट ट्रांसमिट कर रहे, सिर्फ ये कंपोनेंट ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसका पावर सेव होगा और इसका भी पावर सेव होगा, प्लस बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस होगी. ओके, सो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन. ये उसका मेजर एडवांटेज है कंपेयर टू डीएसबी एससी एंड डीएसबी एफसी. डीएसबी SC and DSB FC. Okay, so if we transmit single side band, then there will be a power saving as well as bandwidth saving. Okay, so side band is a band of frequency containing power which are the lower and upper side frequencies of the carrier frequency. Both the side band contain the same information. Okay, done. And the representation of the amplitude modulated wave in the frequency domain is done in this figure, you can see. Okay, so this is the carrier position of the carrier. जो unmodulated carrier है वो at the frequency fc. This is upper side band at the frequency fc plus fm, and this is the lower side band at the frequency fc minus fm. So basically this is the spectrum of DSB fc system, double side band 4 carrier system. Okay, and if we transmit this, then basically it results in the inefficient transmission. Because ये inefficient क्यों है? Because अगर ये कंपोनेंट जो है कोई कैरी इंफॉर्मेशन कोई कैरी नहीं कर रहा है, तो उसको सेंड करने के लिए जो पावर चाहिए, वो बैंडविड्थ चाहिए, वो वेस्टेज है. और ये दोनों साइड बैंड सेम इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, तो दोनों को भेजने की जरूरत नहीं है. वी कैन सेंड ओनली वन, तो भी हमारी इंफॉर्मेशन कन्वे होने वाली है. सो इंस्टेड ऑफ transmitting this upper and lower side band, if we transmit only one, either of one, then there will be a huge saving in the power as well as bandwidth. कितना पावर सेव होगा, कितनी बैंडविड्थ सेव होगी, उसको हम प्रैक्टिकली मैथमेटिकली कैलकुलेट करने वाला है. सो डोंट वरी. ओके, अगर मैं एक ही साइड बैंड भेज रहा हूं, देन हाउ मच पावर विल बी सेव्ड, हाउ मच बैंडविड्थ विल बी सेव्ड, दैट वी विल कैलकुलेट मैथमेटिकली. बट अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं कि ये डीएसबी एफसी का कंसेप्ट क्या है, डीएसबी एससी का कंसेप्ट क्या है, और ये सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट क्या है, वो सिर्फ आपको बता रहा हूं. ओके, सिर्फ आपको मैं एक कंपेरेटिव बता रहा हूं, कंपैरिजन बता रहा हूं कि डीएसबी एफसी, डीएसबी एससी एंड एसएसबी का कंपैरिजन क्या है. ओके, सो हाउएवर सच ट्रांसमिशन इज इनएफिशिएंट, मतलब मैं डीएसबी एफसी सिग्नल ट्रांसमिट करूंगा, ये तीनों कंपोनेंट ट्रांसमिट करूंगा, ट्रांसमिटर टू रिसीवर, देन इट इज बेसिकली इनएफिशिएंट. ओके, सो if we not transmit this
कैरियर, अगर मैं कैरियर को ट्रांसमिट नहीं कर रहा हूं तो कितना पावर बचेगा, 2/3 पावर इज बीइंग वेस्टेड इन द कैरियर। ये कैरियर जो है, जो कैरियर कोई इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा है, अगर मैं इसको ट्रांसमिट करूंगा तो कितना पावर वेस्ट होगा, 2/3 पावर ऑफ द टोटल पावर, 2/3 ऑफ द टोटल पावर विल बी वेस्ट बिकॉज इट डू नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं इसको नहीं ट्रांसमिट करूंगा तो टोटल पावर का 2/3 पावर वो सेव हो जाएगा, 2/3 ऑफ द टोटल पावर विल बी सेव्ड इफ आई डू नॉट ट्रांसमिट दिस कैरियर सिग्नल। कितना ज्यादा पावर सेव हो रहा है देखो। ओके डन। ओके नाउ इफ द कैरियर इज सप्रेस, अगर मैं कैरियर को निकाल दूं, देखो आप देख सकते हो ये सिस्टम है, कैरियर इज सप्रेस, कैरियर निकल गया, यहाँ पे कैरियर था, यहाँ पे कैरियर निकल गया और दो साइड बैंड ही है, मतलब दिस इज नोन एज अ डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम। सो इफ द कैरियर इज सप्रेस एंड पावर इज सेव्ड, power saved is distributed to the two sideband, then such sub process is known as a double sideband suppressed carrier system. अगर मैं पावर सेविंग करने के लिए कैरियर को सप्रेस कराऊं, देन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज नोन एज अ डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर सिस्टम। ओके तो आप देख रहे हो कि अपर साइड बैंड है एट द फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम, लोअर साइड बैंड एट द फ्रीक्वेंसी एफ सी माइनस एफ एम, एंड कैरियर इज कैंसल्ड फ्रॉम दिस मॉड्यूलेटेड वेव। ओके और याद रखो बेटा कि कैरियर को हमें सप्रेस कैसे करना है, बाय यूजिंग सम सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक। कुछ फिल्टर्स, ऐसे फिल्टर्स हम यूज करेंगे जिसका यूज करके हम डायरेक्टली भी प्रोसेस है, डायरेक्टली भी मेथड है जिसका यूज करके हम डायरेक्टली कैरियर को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से सप्रेस कर सकते हैं। मतलब आउटपुट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड के आउटपुट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के आउटपुट में ही कैरियर नहीं रहेगा। ओके एंड द टेक्निक दैट वी विल डिस्कस, डोंट वरी। Now we get an idea that these two sideband carry the same information. So why we cannot suppress one sideband? Yes, this is possible, and that is the single sideband suppress carrier system. Okay, so the process of suppressing one of the sidebands along with the carrier को भी suppress करो और एक कैरियर एक साइडबैंड को भी निकाल दो। क्यों निकाल देंगे हम, क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज दोनों में सेम इंफॉर्मेशन है। अगर अलग अलग इंफॉर्मेशन होती तो हम निकाल नहीं पाते, बिकॉज अलग अलग इंफॉर्मेशन अगर होती तो इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो दोनों साइड बैंड सेम इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। तो अगर मैं एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट करूं और दूसरे साइड बैंड को कैंसल करें, हम उसको सप्रेस करें, तो हमारा क्या होगा, सिस्टम में जो रिसोर्सेज, जो कम्युनिकेशन रिसोर्सेज है, बैंडविड्थ एंड पावर, दैट विल बी सेव्ड, उसका सेविंग होगा। So instead of transmitting these three components, if we suppress one carrier and one of the sideband, this unmodulated carrier and one of the sideband, then and if we transmit only one, then that is known as a single sideband suppressed carrier system. Okay, और ये फिगर में आप देख सकते हो, this is the carrier is suppressed, one of the sideband is suppressed, only one sideband will be transmitted. And what is the advantage of this type of modulation? The advantage is that there will be a use saving in the communication resources, bandwidth and power will be saved. This is the major advantage. Bandwidth and power, which are the two major resources of the communication system, there will be a saving in these two resources. Okay, there will be a saving. Okay, आप देख सकते हो बेटा, अगर मैं दो साइड बैंड भेजता तो हमें कितना बैंडविड्थ चाहिए था, याद करो कितना चाहिए था, ट्वाइस ऑफ एफएम। अगर मैं एक ही साइड बैंड भेज रहा हूं तो हमें कितना बैंडविड्थ चाहिए, दैट इज एफएम ओनली। बैंडविड्थ इज इक्वल टू द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल। ओके, और अगर मैं दोनों साइड बैंड भेजूं तो कितनी बैंडविड्थ चाहिए, ट्वाइस एफएम। और पावर सेविंग भी हो रहा है, इसका पावर बच जाएगा, इसका भी पावर बच जाएगा, देयर विल बी अ ह्यूज पावर सेविंग इन एसएसबीएससी सिस्टम। ओके, कितना पावर सेव होगा वो मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूज ऑफ वन एग्जांपल। Okay, so this SSBSC or SSB system which transmits single sideband has high power, as the power allotted for both carrier and other sideband is utilizing transmitting this sideband. Okay, hence the modulation done using SSB technique is known as a SSB modulation. Okay, this is known as a SSB modulation. Okay, now let's look at the advantages and disadvantages of this SSB. ओके, तो सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन के एडवांटेजेस क्या क्या है,
तो बैंडविड्थ और स्पेक्ट्रम स्पेस ऑक्यूपाइड इज लेसर देन AM एंड DSB-SC सिग्नल। जो हमारा DSB-FC है, डबल साइड बैंड 4 कैरियर है, और DSB-SC दोनों में जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है उसके कंपेयर में SSB में बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। सो बैंडविड्थ और स्पेक्ट्रम यूसेज और स्पेक्ट्रम स्पेस ऑक्यूपाइड इज लेसर इन दिस SSB AM compared to DSB. Okay, transmission, second advantage, transmission of more number of signals is allowed. ओके मतलब बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम हो रहे तो हमारे पास जो अवेलेबल बैंडविड्थ है उसमें बहुत सारे सिग्नल हम ट्रांसमिट कर सकते हैं. ओके एंड वी कैन ट्रांसमिट द नंबर ऑफ सिग्नल्स बाय यूज ऑफ दिस मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक. पावर इज सेव्ड. हम सिर्फ कौन सा ट्रांसमिट, एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट कर रहे हैं तो एक कैरियर कैंसिल हो गया, एक साइड बैंड कैंसिल हो गया, तो ग्रेट पावर विल बी सेव्ड. ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर विल बी सेव्ड. हाई पावर सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड. जो पावर सेव हो रहा है सिंगल साइड बैंड में, हमारे पास जो अवेलेबल पावर है उसमें से सिंगल साइड बैंड जो कैरियर सिग्नल एंड एक साइड बैंड में जो पावर सेव हो रहा है उसको हम एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट करने में यूटिलाइज कर सकते हैं. मतलब हाई पावर सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड अप टू द लॉन्गर डिस्टेंस. लेस अमाउंट ऑफ नॉइस इज प्रेजेंट. जितनी बैंडविड्थ कम होगी सिग्नल की उतना नॉइस इफेक्ट कम होगा. सिंपल है. सिग्नल फेडिंग इज लेस लाइकली टू अकर. सिग्नल फेडिंग भी कम होगा. ओके सिग्नल फेडिंग मतलब एटेन्यूएशन भी कम होगा. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस एसएसबी सिग्नल. एसएसबी मॉड्यूलेशन का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम. कॉम्प्लेक्स सिस्टम मतलब जो जनरेशन है एसएसबी सिग्नल जनरेट करना, हमारा जो DSB-FC है डबल साइड में फुल कैरियर है उससे एसएसबी जनरेट करना, उससे एसएसबी जनरेट करना, दैट इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. सो द जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एसएसबी सिग्नल इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. दिस इज द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस एसएसबी मॉड्यूलेशन. द सेकंड डिसएडवांटेज, द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल गेट्स अफेक्टेड अनलेस द एसएसबी ट्रांसमिट एंड रिसीवर्स हैव एन एक्सलेंट फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी. जो हमारा एसएसबी ट्रांसमीटर है, एसएसबी रिसीवर है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है वो एक्सेलेंट होनी चाहिए. अगर वो एक्सेलेंट नहीं होगी तो सिग्नल क्वालिटी विच आर ट्रांसमिटेड, विच इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड एंड विच इज गोइंग टू बी रिसीव्ड, दैट विल बी अफेक्टेड. ओके सो दिस आर द टू मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एसएसबी. ओके और इसके अगेंस्ट दिस आर द एडवांटेजेस. दिस आर द एडवांटेजेस. ओके डन. समझ में आ गया. सो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया. सो इन टुडेस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ और वेरिएशन ऑफ AM. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अगर अलग अलग वेरिएंट के बारे में डिस्कस किया, अलग अलग वेरिएशन देखे. ओके और उसके कंसेप्ट देखे कि भाई डबल साइड बैंड फुल कैरियर है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और क्यों हम DSB-SC जनरेट कर सकते हैं. DSB-SC से हम एक साइड बैंड भी क्यों सप्रेस कर सकते हैं, वो इसके बारे में देखा. ये वेस्टेजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन अभी हम टच नहीं करेंगे. ओके हम उसको जब SSB खत्म हो जाएगा, हमारा सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन कंप्लीटली हम खत्म कर देंगे, उसके जनरेशन, उसके मेथड्स, वो सब. इसके बाद लास्ट में हम वेस्टेजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन के बारे, उसके कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सिर्फ आपको मैं इतना बता दे रहा हूं कि VSB है वो SSB का मॉडिफिकेशन है, सिंगल साइड बैंड का मॉडिफिकेशन है. मतलब जो सिंगल साइड बैंड का डिसएडवांटेज है हमने अभी देखा. क्या डिसएडवांटेज है कि जो जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन SSB वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. तो उसको इजी बनाने के लिए वो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट जो है हमारी सिस्टम जनरेशन की और रिसेप्शन की, उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम वेस्टेजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन करते हैं. ओके सो अभी मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि व्हाई वी आर गोइंग फ्रॉम SSB टू VSB इन ऑर्डर टू मेक द जनरेशन एंड रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल सिंपल. डन. ओके सो लेट्स स्टॉप हियर. आई होप कि आज हमने जो भी कंसेप्ट डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा. Let's stop here. We will discuss about this single side band modulation and DSB-SC in our next video lecture. Thank you very much.